हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। So friends, in this video I'm going to discuss few important question of the novel Pride and Prejudice. And if you are looking for the summary of this novel, link I have given in the description box, do check it. So let's start with the first question. Discuss the narrative technique of the novel Pride and Prejudice. So for the essay type of question, your pattern of the answer should be like this. There must be introduction, then main content and conclusion. तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, कुछ लाइंस ऑथर के बारे में और कुछ लाइंस नॉवेल के बारे में या फिर जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में। तो ये जो मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है, सेम इंट्रोडक्शन आपको सारे क्वेश्चन में यूज करना है प्राइड एंड प्रेजुडिस के। सो प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ नॉवेल बाय जैन ऑस्टिन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1813. If we'll talk about Jane Austen, then she was an English novelist who was primarily known for her 6 major novels. ये अपने 6 मेजर नॉवल के लिए जानी जाती थी, जिसमें इन्होंने इंटरप्रेट किया है, क्रिटिक किया है और कमेंट किया है किसके ऊपर, ब्रिटिश के हाई सोशल क्लासेस पे, जो हाई सोसाइटी के लोग थे उन पर, जिन्हें कहा गया है ब्रिटिश लैंडेड जेंट्री. ऑस्टिन्स प्लॉट्स often explore the dependence of women on marriage in the pursuit of favorable social standing and economic security. तो ऑस्टिन के ज़्यादातर स्टोरीज में, प्लॉट्स में क्या दिखाया जाता है, विमेन का डिपेंडेंसी ऑन मैन, कि कैसे विमेन जो होती है अपने सोशल सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सिर्फ जल्दी से जल्दी शादी करना चाहती है, अपने एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं देती है, अपने पर्सनल ग्रोथ पे इतना ध्यान नहीं देती, बस किसी तरह शादी हो जाए. द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस फॉलोज द कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ एलिजाबेथ बेनेट. तो एलिजाबेथ बेनेट का यहाँ पे कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया गया है. तो ये प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल की, who learns about the consequence of hasty judgments and come to appreciate the difference between superficial goodness and actual goodness. Now let's see the main content, means what the question is about. It is about the narrative technique. So Pride and Prejudice is narrated by third person omniscient narrator. Third person means वो ना ऑथर है और ना कोई कैरेक्टर है, वो थर्ड पर्सन है, who knows everything about the story, about the characters thoughts, feelings. So this novel is narrated by omniscient narrator. The narrator has access to the thoughts and feelings of the characters and describe these to the reader. तो narrator कैरेक्टर्स की फीलिंग्स के बारे में जानता है, थॉट्स के बारे में जानता है और वो सारी चीज़ें रीडर्स को बता सकता है. The narrator of the novel also frequently adds commentary about characters and their actions, which shapes the reader's perception. For example, at the start of the novel, the narrator describes Mrs. Bennet as a woman of mean understanding, little information and uncertain temper. तो जब मिसेस बैनेट को रीडर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, रीडर्स के अंदर एक परसेप्शन आ गया मिसेस बैनेट को लेकर कि वो किस टाइप की औरत है, किस टाइप का पर्सनैलिटी है. Although the narrator has access to every character's interior life, the novel's events are usually told from Elizabeth's point of view. Austen also makes use of narrative strategy known as free indirect discourse. Free indirect discourse मतलब indirect मतलब जो direct नहीं हो, और discourse means dialogue. तो ऑस्टिन ने नॉवेल में फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स का यूज़ किया है बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इनडायरेक्ट डायलॉग यूज़ किया है, बिना ऐसे बोले कि शी सेड और शी थॉट. तो शी सेड शी थॉट्स क्या है, एक तरीके का सिग्नल है. इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स takes place when Elizabeth's thoughts and feelings are presented to the readers without signals like she thought. For example, a description of Wickham states that, मतलब जब एलिजाबेथ विकहम के बारे में सोचती है, उसको डिस्क्राइब करती है, तो उसमें नरेटर ने रीडर को डायरेक्टली ये नहीं कहा कि शी थॉट, मतलब एलिजाबेथ थॉट. अ डिस्क्रिप्शन ऑफ विकहम स्टेट्स दैट his manner recommended him to everybody. Whatever he said was said well and whatever he did done gracefully. तो इस पैसेज में ये सब चीज़ें कौन ऑब्जर्व कर रहा है, एलिजाबेथ ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन ऐसे लगता है कि नरेटर ऑब्जर्व कर रहा है, नरेटर रीडर्स को बता रहा है ये सब. Austen's use of third-person narration and free indirect discourse is important because these devices show that all the characters, including Elizabeth,
frequently make assumptions and error in judgment. The third person narrator provides an outside perspective on events, reminding readers that the perceptions of characters may not always be accurate. तो जब हम थर्ड पर्सन नरेटर के थ्रू या फिर फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स के थ्रू कैरेक्टर के एजम्पशन को या फिर जजमेंट को समझते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कैरेक्टर्स जो है हमेशा सही नहीं होते, उनके जो जजमेंट होता है, उनके जो थॉट्स होते हैं वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो थर्ड पर्सन नरेटर एंड फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स दोनों का जो पर्पस रहता है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे जो एलिजाबेथ और डार्सी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसका जो मेन रीज़न था एलिजाबेथ का बहुत ही जल्दी जजमेंट ले लेना, जल्दी अज्यूम कर लेना कि हाँ ये जो मैं सोच रही हूँ वही सही है, ये ऐसा ही है। आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि कैसे वो तुरंत कंक्लूजन पे आ गई कि विकेम बहुत ही अच्छा आदमी है और जो डार्सी है बहुत ही बुरा है, बहुत ही ज़्यादा प्राउडी है, और उसका ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने में बहुत टाइम लग गया। लेकिन जो फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स है इसका जो मतलब जो डायलॉग्स होते हैं उसके वजह से रीडर को तुरंत समझ में आ जाता है कि कौन सा कैरेक्टर कैसा है। मतलब एलिजाबेथ के पहले ही रीडर्स को समझ में आ गया कि डार्सी एक अच्छा इंसान है। तो ये किसके थ्रू हुआ? फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स के वजह से। फिर ऑस्टिन ने नॉवेल में डायलॉग का यूज़ इतने अच्छे से किया है जिसके वजह से कैरेक्टर का ट्रेट के बारे में पता चलता है, मतलब उसके क्वालिटी के बारे में पता चलता है, फिर सोशल चेंजेस के बारे में पता चलता है और उनके बीच कैरेक्टर्स के बीच में क्या टेंशन चल रहा है, वो सारी बातें जो है वो डायलॉग के थ्रू बहुत ही क्लियर हो जाता है। द कन्वर्सेशंस आर ऑफन लेस्ड विथ आयरनी, ह्यूमर एंड सटल क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल कन्वेंशंस। आयरनी मीन्स a strange situation. Dialogue serves as a means of conveying information, advancing the plot and adding depth to the characters. तो कौन स्टोरी को नरेट कर रहा है, किस तरीके से नरेट कर रहा है, ये सब किस में आता है? नरेटिव टेक्निक में आता है। ओके, नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन। ओवरऑल ऑस्टिन्स narrative technique in Pride and Prejudice combines a keen observation of society, engaging dialogue, irony and insightful characterization to create a multi-layered and engaging storytelling experience. Her style allows reader to delve into the complexities of human behavior and societal norms while enjoying the humor and wit that have made the novel a timeless classic. The next question is examine Jane Austen's treatment of love and marriage in Pride and Prejudice. तो इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं, थीम्स वो पूछ सकते हैं कि थीम ऑफ लव एंड मैरिज इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो जो इंट्रोडक्शन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था आपको वही लिखना है। हम डायरेक्टली मेन कंटेंट से स्टार्ट करते हैं। Pride and Prejudice by Jane Austen, published in 1813, explores the themes of love and marriage within the context of 19th century English society. तो ये 19th century के इंग्लिश सोसाइटी की बात हो रही है कि उस वक्त लव और मैरिज का क्या इंपॉर्टेंस था, लव का क्या इंपॉर्टेंस था, मैरिज का क्या इंपॉर्टेंस था। तो ये नॉवेल ऐसा सोसाइटी पोर्ट्रे कर रहा है जहाँ पर मैरिज जो था वो इसलिए करना चाहते थे लोग ताकि उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके, सोशल स्टेटस मिल सके, जहां अफेक्शन और कंपैटिबिलिटी का बहुत ही कम इम्पोर्टेंस था। तो ये नॉवेल एक तरीके का क्रिटिक है उस टाइप की सोसाइटी पर, और साथ ही तो ऑस्टिन ने डिफरेंट व्यू दिखाया है लव और मैरिज का अपने डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू। तो इस आंसर में आपको जितने भी इस नॉवेल में कपल्स हैं उनका अपने पार्टनर के साथ कैसा रिलेशन है उसके बारे में आपको लिखना है। The novel opens with the famous line, it is very important, you must write this. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. मतलब कोई सिंगल आदमी जिसकी शादी नहीं हुई है और वो वेल सेटल्ड है तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या है? शादी करना। This statement sets the tone for the treatment of love and marriage in the story. Throughout the novel, characters are constantly aware of the economic and social implication of marriage and make decisions based on these factors. तो यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको सोशल इम्प्लीकेशन के बारे में पता है और साथ ही साथ जिसके साथ वो शादी कर रहे हैं उसके सोशल स्टेटस और फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता है, और इनफैक्ट उसी के बेसिस पे ये लोग शादी का डिसीजन ले रहे हैं। तो हर कैरेक्टर सिर्फ पैसे के लिए शादी नहीं किया है, अपने सोशल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए नहीं शादी किया है। तो इसमें जो दो कैरेक्टर हैं जैसे कि जेन और एलिजाबेथ, तो बिंगले और जेन का जो रिलेशन था वो एक्चुअली में जेन्युइन था। एक्चुअली में दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे
और एलिजाबेथ को पता था कि डार्सी भी बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन कभी भी वो उसके पीछे नहीं भागी, उसके साथ शादी करने के लिए डेस्परेट नहीं हुई। इनफैक्ट डार्सी उसे अप्रोच भी किया, उसके बाद भी उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जब धीरे धीरे उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है तब वो डार्सी का प्रपोजल एक्सेप्ट करती है, उससे शादी करती है। लेकिन उसका जो रीज़न रहता है वो पैसा नहीं रहता, उसका रीज़न होता है लव। Through 5 marriages, Jane Austen defines good and bad reason for marriages. तो वो 5 marriages किसके थे? शार्लेट एंड कोलिंस, लीडिया विकहेम, जैन बिंगले एंड एलिजाबेथ डार्सी। ये तो न्यूली वेड थे और उसमें जो ओल्ड थे कौन थे? मिस्टर एंड मिसेस बेनेट। तो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की जो शादी थी वो बहुत ही वर्स्ट एग्जाम्पल था शादी का। दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट थे। मिसेस बेनेट एकदम रेडिकुलस दिखाई गई है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना, और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बेनेट थोड़ा सा सीरियस और रिस्पॉन्सिबल दिखाया गया है। फिर जो दूसरी शादी थी शार्लेट और कोलिंस की, शार्लेट जो थी वो एलिजाबेथ की फ्रेंड थी। पहले कोलिंस जो है वो एलिजाबेथ में इंटरेस्टेड था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो कोलिंस की शादी शार्लेट के साथ हो गई, और यहाँ पे एकदम क्लियर था कि शार्लेट ने कोलिंस से इसलिए शादी की ताकि उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। तो ये पैराग्राफ एकदम सिंपल लैंग्वेज में, आप इसे ज़रूर से पढ़िए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर जो थर्ड कपल थे वो लीडिया एंड विकहेम थे। The runaway marriage of Lydia and Wickham is based on very superficial qualities as sex, appearance, good looks and youthful flirtation. तो इनकी शादी किस पर बेस्ड थी? यूथफुलनेस पर, अपीयरेंस पर, गुड लुक्स पर, सेक्स पर, फ्लर्टेशन पर। और वहीं पर दूसरी तरफ जैन और बिंगले को दिखाया गया जिनका मैरिज सक्सेसफुल था एंड दे वर ट्रूली इन लव विथ ईच अदर। द सेंट्रल कैरेक्टर्स एलिजाबेथ एंड डार्सी चैलेंज द कन्वेंशनल नोशन ऑफ लव एंड मैरिज। तो कन्वेंशनल नोशन क्या है कि शादी जो है वो पैसे के लिए की जाती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए। तो इस नोशन को उन्होंने चैलेंज किया। इनिशियली एलिजाबेथ्स प्रेजुडिस अगेंस्ट डार्सी एंड हिज प्राइडफुल डिमीनर create a barrier between them. However, as the story progresses, they both undergo personal growth and self-reflection, leading to a deeper understanding and eventual love for each other. Austen's treatment of love and marriage in Pride and Prejudice ultimately emphasizes the importance of genuine affection, understanding, and mutual respect in a successful marriage. Elizabeth and Darcy's relationship serves as a counterpoint to the other marriages in the novel, illustrating that love should be based on more than just financial consideration or societal expectations. Now let's see the conclusion. Thus, the theme of love and marriage is very aptly exemplified in Pride and Prejudice. Beginning with the arrival of Bingley and Darcy, both single men in possession of a good fortune, the novel traces the courtship of Jane and Bingley and Elizabeth and Darcy through various misunderstandings and hindrances before they are happily married to each other. We can sum up our discussion in the words of Elizabeth. There can be no doubt that it is settled between us already that we are to be the happiest couple in the world. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।